हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है एंड दैट इज़ एमबीए स्पैम कॉल्स। आई एम श्योर बहुत लोगों को ऐसे कॉल्स आए होंगे जहाँ पे दे आर प्रॉमिसिंग और गारंटिंग यू कि आपको ये कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे, या फिर दे आर टेलिंग यू दैट देर इज़ अ डेडलाइन दैट इज कमिंग अप एंड यू शुड बी सुपर स्केर्ड ऑफ मिसिंग दिस डेडलाइन बिकॉज ये आगे जाके कभी नहीं खुलने वाला। सो ऑल दोज थिंग्स हैपन। सो आई विल ट्राई टू टेल यू राइट कि वॉट ऑल थिंग्स आर देयर दैट यू शुड कीप इन माइंड वेन एवर यू गेट दीज काइंड ऑफ कॉल्स। कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज सी नॉट ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस आर बैड कॉलेजेस। काफ़ी सारे कॉलेजेस इसमें से डिसेंट कॉलेजेस भी होते हैं। सो व्हेन इज इट दैट यू शुड एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर ऑफर दैट इज बीइंग मेड टू यू, कब उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, कहाँ से रिसर्च करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके पीछे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उनको पता कैसे चलता है दैट यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट एंड you are someone who is in contention to go for an MBA program this year. And it is not just about having filters or anything. They will call each and every person irrespective of their status. In fact, आए दिन मुझे भी 8 से 10 कॉल्स आते हैं asking if I am interested in an MBA program or not, and they have no idea about my profile, my score, what my age is, मैं क्या कर चुका हूँ, कुछ नहीं पता होता उनको. They just have a database जहाँ पे मेरा नंबर होगा, मेरा मेल आईडी होगा अगर मेल्स आ रहे हैं तो, और मेरा नाम होगा. That's it. They don't even know which tests I have appeared for. Their pitch is typically आप MBA करना चाहते हो कि नहीं. That's it. That's basically what they know. So how do they know these details? So there are 4 broad avenues जहाँ से उनको ये details मिलते हैं. I am sure all of you know about all these avenues, but I'll just cover for those of you who are curious कि यार मेरा data मिला कहाँ से. The first thing is institutes. If you have joined an institute at any point in time, काफ़ी सारे institutes होते हैं जिनके terms and conditions में लिखा होता है. So I will not say that it is something that is legally prohibited. You have signed on the terms and conditions wala page, and you have to sign on the terms and conditions wala page if you are to enroll with an institute. तो वहाँ पे clearly लिखा होता है that your data will be used to send you some communications that might be relevant to you. So that is the first way from where your data goes into the system and people come to know that you're looking at an MBA institute. So is it wrong on their behalf to share your data with the institutes or the colleges that are there? There is a gray area here, right? Because you have given your consent and you were desperate enough to join the institute. When the institute was calculating your fees, they had also built in this cost into your fees. So the cost of your data, वो भी उसके अंदर built in था. That's why you maybe got a deal जहाँ पे you got it for a cheaper price than you would have otherwise. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. But the institutes do it, and I'm sure that anyone who has signed up for it with an institute for your CAT preparation, you would know that you would be getting these kind of mails because of that particular association. कोई जगह पे इंस्टीट्यूट सामने से बोल देंगे दैट वी आर शेयरिंग दिस कम्युनिकेशन विथ यू एज अ मार्केटिंग थिंग, वी डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी ट्रूथफुलनेस और दी वेरासिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज देयर. तो वो सबके पीछे सबके लिए हम जिम्मेदार नहीं है. वी आर जस्ट शेयरिंग दिस बिकॉज वी आर एन इंस्टीट्यूट, यू हैव साइंड अप विद अस एंड वी हैव रिसीव्ड दिस इन्फॉर्मेशन, सो आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग इट एज रिसीव्ड. तो वो एक चीज़ होती है. तो इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं. देर आर नो टू वेज अबाउट इट. डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट हैपन्स. The second thing is information portals. So काफ़ी जगह पे you would have seen that you would have been asked for your email ID, your phone number, if you want to access the placement report or you want to download an old CAT paper or ZAT paper. ऐसे कुछ भी अगर डाउनलोड करना होगा या कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, they would have asked for your mail ID. As soon as you give them your mail ID, they know that you are looking at an MBA program. काफ़ी टाइम you will start getting calls almost immediately, but कुछ लोग होते हैं जो उस डेटाबेस पे बैठ जाते हैं और at the end of the season जब उनको पता है that Jan Feb वाला टाइम होगा जहाँ पे people are slightly scared, worried, desperate, तो वहाँ पे वो कैपिटलाइज करने के लिए कॉल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं. The third thing is test takers database. You'll be surprised to know that whatever test you would have appeared for at any point in time in your life, अगर वो एक पैन इंडिया टेस्ट है, उसका database mostly available होगा on online portals. In fact, you can also make a purchase for it and it will be very cheap. मतलब 2,500-3,000 में तुमको पूरा database मिल जाएगा. That is basically how things work. So if you look at 10 standard CBSE applicants database, if you are looking at say commerce graduates का database, engineering colleges के लोगों का database, JEE का database, again if you are looking at the medical entrance tests का database, MBA entrance test का database, सारे databases available होते हैं online for a very minimal sum. मतलब 3,500-4,000 के अंदर अच्छे अच्छे टेस्ट्स का डेटाबेस मिल जाएगा.
So that is basically how things work, and these databases are available freely online. Freely नहीं मतलब almost freely, चलो मतलब if I have to spend 3,000 4,000 rupees on this database, it's almost as good as free, right? So यहाँ से भी मतलब काफ़ी databases leak हो जाते हैं. And voluntary submission, this is basically where you would have voluntarily said कि okay, I think that this college is something that I see myself getting into, तो इसके अंदर मैं अपना डेटा डाल देता हूँ, तो वहाँ से मुझे शायद कुछ कॉल आएगा. मे नॉट बी फॉर द सेम प्रोग्राम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, बट कोई सिस्टर प्रोग्राम के लिए कॉलेज से कॉल आ सकता है. सो दीज आर द एवेन्यूज फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग और दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एन MBA. सो यहाँ से पता चलता है कि क्या आता है. अब आगे जाके देखते हैं कि व्हाट इज इट दैट यू शुड बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. So now the next question is, why do these people call? So यहाँ पे I have graded this into 3 categories. तो first thing is new institutes अगर कोई है तो awareness के लिए call करते हैं कि चलो we are very new in this particular sector. You might not have heard our name, but we are doing X, Y, Z. We have these courses, we have these faculty members. ये state of the art infrastructure है, ये हम लोग loans में assist करेंगे, ये scholarships देंगे, ऐसे placements करेंगे, हमारा new age program है. So all those things are there. तो नए institutes will almost invariably call for awareness कि भाई सिर्फ हमको consider कर लो. वी आर नॉट टेलिंग यू कि नहीं तुमको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, बट प्लीज कंसिडर अस. दीज आर द 5 बेनिफिट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग कंपेयर टू एनी अदर MBA प्रोग्राम दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन. सेकेंड थिंग, सेमी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट जिनको मतलब 10, 12, 15, 20 साल हो चुके हैं, जो अपना बैच फिल कर सकते हैं. सो द फर्स्ट ग्रेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर द वंस जिनका बैच शायद फिल नहीं हो रहा, एंड दे आर वरीड दैट इफ दे आर नॉट एबल टू फिल द बैच, देयर इकोनॉमीज माइट नॉट मेक सेंस. बिकॉज ऑफ दैट दे आर स्लाइटली डेस्परेट टू हैव यू ऑन बोर्ड. तो वो लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी नहीं मतलब बहुत कुछ करने के लिए रेडी है. Second thing is semi-established institutes. These institutes are mostly not scared of not being able to fill their batch. तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि ये डेडलाइन है, 20th January इज द डेडलाइन, इसके बाद अगर आप अप्लाई करने भी आओगे तो भी हम आपका एप्लीकेशन नहीं लेंगे. सो दीज पीपल आर दी वंस हु विल ट्राई टू थोड़ा सा थ्रेटन यू और स्केयर यू कि अरे अगर आप नहीं एडमिशन लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके लाइफ में. सो डू कंसिडर अस एंड अप्लाई एट द अर्लीस्ट और fill this form at the earliest. तो ऐसी चीज़ें होती है. The third thing, which is the most troublesome one, I would say, are the top colleges से जो calls आते हैं, right? So top colleges typically will not call you, because of that I have put this question mark here. But थोड़े sneaky admission techniques होते हैं. I am sure you would have heard of these messages that you get, and I am quoting these messages. That's why I am taking the names of these colleges. I am in no way claiming or saying that these colleges encourage these kind of behavior, but you will see a lot of messages that will tell you that we have guaranteed admission into colleges like the IIMs, NMIMS, JBIMS, SPJIMR and other top colleges in the country. तो ऐसे colleges के messages आपको आए होंगे. These are sneaky tactics. See, there are 2 ways that are present in this. One, are they genuine or not? They are semi-genuine, I would say. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कभी कभी एक नेक्सस वर्क करता है. काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर देर आर सम सीट्स दैट द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अलाउड टू फिल. सो लेट्स से एक कॉलेज के अंदर 200 सीट्स हैं, उनको बोला गया है कि ये 200 सीट्स के अंदर यू विल हैव स्टैंडर्ड रिजर्वेशंस दैट वुड अप्लाई, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन है, एंड देयर विल बी सम जनरल कैटेगरी सीट्स दैट विल बी देयर. इन एडिशन टू दीज सीट्स देयर आर सर्टन सुपर न्यूमररी सीट्स. अब सुपर न्यूमररी सीट्स बहुत सारे कैटेगरीज के हो सकते हैं. यू कैन हैव चिल्ड्रन ऑफ वॉर वेटरन्स हो सकते हैं, यू माइट हैव सम स्टेट बेस्ड कोटा, जैसे JNK माइग्रेंट्स कोटा कहीं जगह पे होता है. यू माइट हैव सम सीट्स दैट आर फॉर लेट्स से PWD कैंडिडेट्स. तो कई कई जगह पे ये सुपर न्यूमररी सीट्स में गिने जाते हैं. देर आर ऑल्सो सम सीट्स दैट आर अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल्स और NRIs. अब फॉरेन नेशनल्स के लिए जो सीट्स होते हैं वहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम टू हैव एन इन टू द कॉलेज, एंड वो अगर हम आपको उस कैटेगरी के थ्रू अगर अंदर घुसा देंगे तो आपको वहाँ पे सीट मिल सकता है. दैट इज बेसिकली व्हाट गारंटीड एडमिशंस वाले पीपल डू. शुड यू बी ट्रस्टिंग दिस पीपल? Yeah, I would definitely not want to trust these kind of scenarios, because see, in some cases you might actually get into the college. I'm not denying कि होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता. There might be a situation जहाँ पे you might get into the college, but there is a much higher chance of you getting scammed and you having to pay some money upfront and they running away with your money, right? So ये चीज़ें हो सकती है. So be very careful when you are dealing with this. I would definitely not suggest you to go for anything like this, because at the end of the day, one thing is, of course, you will always have that thing in your head, right? So वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहेगी, that do I deserve to be a part of this institute or not? और वो हर जगह पे बार बार आते रहेगा. So don't get into these kind of things. If you genuinely deserve to be in the college, you will be able to go through the traditional process and make it.
and then you will be happier, you will be more content, you will basically be able to participate in the placements in a much more confident manner, so to say. तो वो कर लेना, ये वाली चीज़ें मत करना unless you are absolutely desperate and you have a lot of money to burn. अगर ऐसा कुछ सीन है तो maybe you can try it out, but I would definitely not recommend any of my students to go for any of these things, the sneaky admissions bit. तो बिल्कुल मत करना. I don't think it is worth all that hassle and the kind of money that you might end up giving up. Now, what to do? Now, there is a very interesting documentary slash drama bit or series that was there on Netflix. It came out in 2020. I don't know if you have heard of it. It's called The Social Dilemma. ठीक है? And there was a very nice quote in that particular thing. Right? If you are not paying for the product, then you are the product. तो ये बहुत ही simple सा एक चीज़ है. If you are not paying for the product, then you are the product. So make sure that you know what to do. You are taking an informed decision. तो क्या करना चाहिए? सिंपल चीज़ें हैं कुछ. पहले पता करो कि डेस्परेशन लेवल किसका ज़्यादा है. राइट? IIMs विल नेवर कॉल यू एंड टेल यू कि आप एडमिशन ले लो, आप एडमिशन नहीं लोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन के पहले एडमिशन भर देना, फॉर्म भर लेना. आई डोंट थिंक दे विल डू दैट. नॉट इवन एन XLRI और एन FMS और एन SPJMR, एन MDI, एन IIFT, JBIMS, whichever college, right? With any of the top 50 or so colleges, they will definitely not run behind you and ask you to take admission into their college. उतना desperation नहीं होता. There are some colleges which are absolutely desperate and they want you to take admission कि भाई मतलब परेशान कर देंगे कॉल करके. ठीक है? तो हमेशा ना you have to understand that your relationship has to be between equals. एक बहुत ही सिंपल सा एक axiom है. And both of them should be equally in love, right? For something to work out. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन ज़्यादा डेस्परेट है वो आ जाता है. इफ द इंस्टीट्यूट इज मोर डेस्परेट देन यू विल बी ऑन बोर्डेड, बट उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुमको पता नहीं है. इफ यू आर मोर डेस्परेट देन द इंस्टीट्यूट, इट स्टिल मेक सेंस बिकॉज यू आर बीइंग एस्पिरेशनल. इफ द इंस्टीट्यूट इज कंसिडरिंग यू एज एस्पिरेशनल, देन यू हैव टू थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि भाई ये लोग क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है? सो इफ द इंस्टीट्यूट इज बीइंग सुपर डेस्परेट, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ रेड फ्लैग फॉर यू. अंडरस्टैंड दैट might not really be the best thing that might be happening to you. You might have better options and because of that the institute is more desperate कि भाई इनको अगर on board ले लेंगे तो शायद हमारे लिए better रहेगा. So just understand what your worth is in this particular sector and then react to things that are happening. So second thing, don't overreact. कोई भी अगर कॉल करके पीछे पड़ रहा है, so don't overreact. There is a thing that happens with a lot of parents, right? And if you are a parent and you are watching this, then I think you would be able to realize this or understand this better. If you are a student and your parents have been talking to you about this, then again you will know what I'm talking about. काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि कहीं से कुछ कॉल नहीं आ रहा एंड सडनली वन इंस्टीट्यूट स्टार्ट्स कॉलिंग यू एंड दे से कि हमारे पास 8 लाख रुपया 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, 100% प्लेसमेंट है, ये अक्रेडिटेशन हमारे पास है, ये 5 कंट्रीज़ के साथ या ये 5 इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाई अप है. सो you start feeling better about yourself, right? You start acting in a slightly more positive manner. So don't overreact to things just because someone is calling you 5 times in a week or someone is sending you physical brochures, someone is encouraging you to come to their college and take a tour, doesn't mean that it's a good college. So don't overreact. Just because you're not getting calls from a lot of institutes does not mean that you should give in to whichever institute calls you the most number of times. That is not the way in which you think about things. ठीक है? अगर इंटरेस्ट नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स, ट्राइंग टू शो देम कि भाई मेरा परसेंटाइल ये है, तुम्हारा कॉलेज क्या है, ये सब करने के जगह पे पोलाइटली डिक्लाइन एंड ब्लॉक द नंबर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड. उससे ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे लाइफ के साथ क्या हो गया, मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट कॉल कर रहा है, एम आई रियली दैट बैड. डोंट रियली थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. पोलाइटली डिक्लाइन, क्लोज द कॉन्वर्सेशन देन एंड देयर. टेक अ सेकेंड ओपिनियन बिफोर रिएक्टिंग. अगर कहीं से भी कॉल आता है एंड इफ यू आर स्लाइटली इफी कि इसको मुझे कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कंसिडर करना चाहिए, टेक अ सेकेंड ओपिनियन बिफोर रिएक्टिंग. अ स्मॉल थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी एज वेल कि मुझे यहाँ से कॉल आया है तो मुझे क्या करना चाहिए. सो माई question, the follow-up question is fairly straightforward. You have to tell me what your expectations are, what your profile is like, how desperate you are, तुम्हारे पास प्लान भी क्या अवेलेबल है, आर यू कंसिडरिंग एन एग्जीक्यूटिव MBA और अ फॉरेन MBA या कुछ कंसिडर कर रहे हो कि नहीं. ये सारा चीज़ अगर मुझे बता दोगे ना तो आई विल बी एबल टू एडवाइस यू बेटर कि क्या करना चाहिए, शुड यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और नॉट. सो इफ समवन कम्स टू मी विद अ 999 प्रोफाइल हु इज अ फ्रेशर एंड सडनली दिस पर्सन सेज दैट आई वांट टू जॉइन द 200th रैंक कॉलेज इन द कंट्री, आई वुड डेफिनेटली आस्क दैट पर्सन टू रिकंसिडर दिस पर्टिकुलर डिसीजन कि मत लो,
think about your profile, you deserve a bit better. If I were in your place, I would not have done something like this. That's it. So take a second opinion before reacting, before saying yes or before saying no. एक second opinion ले लेना. Ask them for some time. फोन पे तुमको नहीं कंफर्म करना एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है. Ask them for a couple of days. If you are slightly interested, तुमको लग रहा है कि यार ब्रांड में कुछ दम है, कुछ कर सकते हैं, तो ask them to call you after 2 or 3 days and then you will be able to answer. Do your research in those 2 or 3 days that you get. ठीक है? तो second opinion definitely ले लेना before reacting. डोंट ट्रस्ट रेडिट स्लैश कोरा एड पोस्ट्स. काफ़ी सारी जगह पे आई एम सेइंग रेडिट और कोरा पे जेन्युइन एडवाइस मिलेगा, आई अग्री, बट काफ़ी सारे कॉलेजेस ना आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. सो व्हाट दे विल डू इज दे विल आस्क सम पीपल टू प्रिटेंड एज देयर पास स्टूडेंट, या फिर कहीं से उनको कोक्स करके बोल देंगे कि भाई तुम ये चीज़ें डाल दो रेडिट के ऊपर, कोरा के ऊपर, एंड देन यू सर्च फॉर रिव्यूज देयर. यू विल सी अ लॉट ऑफ नाइस फ्लावरी रिव्यूज. यू विल सी सम यूट्यूबर्स टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, एंड यू विल बेसिकली से कि अच्छा चलो ठीक है, इतने सारे लोग अगर बोले तो सही बोल रहे होंगे. नॉट रियली. रेडिट, कोरा, यूट्यूब, influencers in general, you have to take all these opinions with a pinch of salt. You have to reach out to someone जिसका skin in the game नहीं है, right? You have to talk to a student through LinkedIn. यार LinkedIn पे सर्च कर लो कि भाई ये कॉलेज में कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा था या पढ़ रही थी over the last couple of years or so. Try to get in touch with them, talk to them and then decide कि क्या करना चाहिए. अगर ऑनलाइन फोरम्स पे जाओगे, सर्च करोगे एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन और नॉट, आई थिंक दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ डिजास्टर, बिकॉज बहुत सारे फ्लावरी ओपिनियंस होते हैं एंड यू विल सी जो भी पोस्ट के अंदर बहुत सारे लिंक्स डाले हुए हैं कि दिस इज द कॉलेज, दिस इज द बेस्ट कॉलेज, लिंक डाल दिया, हाइपर लिंक कर दिया, दिस इज द कोर्स फी, हाइपर लिंक कर दिया. यू नो दैट दैट इज एन एड पोस्ट. मतलब कोई भी स्टूडेंट, थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी रिव्यूज हैव यू गिवन फॉर योर कॉलेज? तुम्हारे अंडरग्रेड कॉलेज के लिए कितने रिव्यूज तुमने बैठ के लिखे हुए हैं ऑन कोरा और रेडिट? जस्ट थिंक अबाउट इट and then react to these posts that are there, right? So talk to someone जिसका skin in the game नहीं है, that is the best way, or someone whom you trust, कि वो उनको गलत एडवाइस नहीं देगा. तो ऐसा कोई अगर इंसान है तो do talk to them and they will be able to guide you better instead of falling for ad posts that are there. And advice for subsequent attempts in case you are planning to take any, एक बर्नर ईमेल आईडी यूज़ कर लेना, एक मोबाइल फ़ोन नंबर यूज़ कर लेना दैट यू आर यूजिंग ओनली फॉर एडमिशंस. उसको बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ मत करना बियॉन्ड योर एडमिशंस एंड बियॉन्ड योर शॉर्टलिस्ट. उसको छोड़ देना, फेंक देना इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. ठीक है? डोंट गिव योर पर्सनल आईडी बिकॉज वो हमेशा उनके साथ रहेगा. यू माइट एंड अप गेटिंग कॉल्स एंड मेल्स फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर. तो वो सब चीज़ें मत करना. एक बर्नर ईमेल आईडी यूज़ कर लेना. यू कैन keep that ID, you can call that ID, you can say MBA admissions 2025, ये ID @gmail.com, यही बनाना, यही यूज़ कर लेना for any college that you are going for. and उसको चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है. You can only check it for whether you have got shortlist or not, और उसकी beyond उसका कोई utility नहीं है. So that will help you keep your mail inbox clean. Same thing goes with your mobile number. कभी कभी हम लोग फ़ोन उठा लेते हैं कि भाई मतलब कोई फैमिली का फ़ोन होगा, किसी का फ़ोन होगा जो शायद नीड में होगा, कोई फ्रेंड का फ़ोन होगा, वी डोंट नो, राइट? बट इफ़ यू हैव अ बर्नर मोबाइल नंबर देन यू नीड नॉट वरी अबाउट मिसिंग आउट ऑन सम कॉल्स दैट आर देयर. मोस्टली सारे कॉल्स स्पैम ही होने वाले हैं, सो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट दैट बिट. तो ये एक चीज़ यू कैन रिमेंबर. यू कैन मे बी एडवाइस योर siblings or your friends or your juniors if they are planning to take it in the next year as well. Now, when to accept? ये सबसे ट्रिकी पार्ट आ जाता है जहाँ पे यू आर sort of interested in the college, you are interested in the program, you think that इसको accept कर सकते हैं, तो कब accept कर लेना चाहिए? अकैट्स बहुत ही खराब है, लेट्स से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स हियर, राइट? आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि अकैट्स खराब है तो एक्सेप्ट कर लो. नो. अगर अकैट्स 776 के नीचे हैं, 70% इन 10th, 70 इन 12th, 60 इन ग्रेजुएशन के नीचे अगर अकैट्स हैं, एंड कोई भी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ भी अगर सीवी के ऊपर एक ब्राइट, एक रे ऑफ सनशाइन नहीं दिख रहा, देन मे बी यू कैन थिंक अबाउट कॉलेजेस बियॉन्ड द टॉप 50, टॉप 100 और सो. सेकेंड थिंग, कैट के अंदर परसेंटाइल काफ़ी खराब रहा है. नाउ 75 परसेंटाइल इज नॉट अ बैड नंबर ऑफ कोर्स, बट सच इज द कॉम्पिटिशन इन टुडेज डे एंड एज दैट 75 के नीचे, 70 के नीचे ऑल द ऑप्शंस विल बी मोर और लेस सिमिलर. ठीक है? तो अदर टेस्ट कैट के अंदर अगर स्कोर कम आया है, अकैट्स भी खराब है, यू माइट वांट टू कंसिडर द कॉल्स दैट यू आर गेटिंग, बट उसके अंदर भी बी स्लाइटली सिलेक्टिव. अगर हाथ में जॉब नहीं है या फिर कोई भी प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है ऑफ गेटिंग अ जॉब, देन इट मेक्स सेंस फॉर यू टू थिंक अबाउट द ऑप्शंस बियॉन्ड द टॉप 50, 100 colleges that were there on your radar.
फैमिली प्रेशर बहुत जगह पे होता है. आई नो दैट दिस इज जस्ट कैजुअली स्पोकन अबाउट, बट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस पीपल थिंक अबाउट गोइंग फॉर एन MBA बिकॉज दे डोंट वांट टू डू अ जॉब, बिकॉज देयर फैमिली इज पुटिंग प्रेशर ऑन देम, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. ये सारी चीजें होती है. तो फैमिली प्रेशर अगर है, आई हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर. यू आर द बेस्ट जज कितना तुम्हारा फैमिली इज बुलिश ऑन यू गोइंग फॉर एन MBA दिस ईयर. Depending on that, you can think about it. But yes, it is a real thing. The best thing you can do is to convince your family कि नहीं, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, ये चीज़ें मैं improve कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, and I deserve a better college with this profile. That's why I will not take up the colleges this year. Especially if you have been getting a lot of colleges, your parents will also be slightly jittery. कह रहे तुमको इतने कॉल्स आ रहे हैं, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, उसमें तो 10 लाख पर एनम का पैकेज लिखा हुआ है, उसमें तो 12 लाख पर एनम का पैकेज लिखा हुआ है. So don't fall for that family pressure. But in case you are someone who is looking for an out from that angle as well, you might want to consider. This is completely up to you. इसके बाद देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल बियॉन्ड योर 2-year MBA. ये समझ लेना सबसे पहले, ठीक है. अगर तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, कैट अदर टेस्ट के लिए शायद नहीं बने हुए हो, फोकस ऑन योर जॉब. मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर इवेंचुअल गोल ऑफ गेटिंग इन टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री से फॉर एग्जाम्पल, और अ फंक्शन मोर इंपॉर्टेंटली. तो अगर मार्केटिंग में जाना है ना, तो स्टार्ट हंटिंग फॉर मार्केटिंग रोल्स, गो फॉर दोज मार्केटिंग रोल्स दैट यू गेट, एंड देन बिल्ड योर CV accordingly. 5 years, 7 years down the line, you can go for an executive MBA with a much better brand. You might also want to explore prospects of an abroad MBA, and वहाँ पे काफ़ी सारे better brands मिल सकते हैं. So don't get desperate and settle for an MBA, especially if you believe in the power of an executive MBA. ठीक है. तो हाथ में अगर एक डिसेंट जॉब है, तो थिंक अबाउट एन एग्जीक्यूटिव MBA वेरी सीरियसली, और दोज प्रोग्राम्स दैट आर फ्लोटेड बाय मेनी ऑफ द IIMs जहाँ पे एलुमनाई स्टेटस मिलता है. तो ऐसे प्रोग्राम्स अगर हैं एग्जीक्यूटिव MBA के लिए अगर सोच सकते हो, डोंट सेटल फॉर एन ऑप्शन विच यू बिलीव दैट यू डोंट और दैट डजंट डिजर्व यू इन अ वे. तो सोच लेना बिफोर यू एक्सेप्ट. बट हाँ, अगर एग्जीक्यूटिव MBA में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं वेट करना है, जॉब ही नहीं मिल रहा, बहुत सिचुएशन खराब है, देन गो फॉर द ऑप्शन दैट यू थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन एंड टेक इट अप, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. And the last thing, you are confident of finding placements on your own. Now, I know that a lot of us basically do an MBA because we want good placements, but कोई भी कॉलेज में गारंटी नहीं है कि तुमको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी. तो कोई भी कॉलेज में अगर जाते हो, कोई भी कॉलेज को अगर हाँ बोलते हो, यू गेट इन टू दैट कॉलेज, मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर प्लेसमेंट्स ऑन योर ओन. ठीक है. उनके प्लेसमेंट टीम पे या उनके TPO पे डिपेंडेंट मत रहना, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस दीज कॉलेजेस विल नॉट हैव फॉर्मल प्लेसमेंट प्रोसेसेस जैसे टॉप कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ पे जस्ट सिटिंग प्रेटी एंड बहुत सारे कंपनीज आते हैं, तुम्हारा CV देखते हैं, एंड यू विल फाइंड सम और द अदर कंपनी दैट विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग यू. उतना ऑर्गेनाइज प्रोसेस जनरली ये कॉलेजेस में नहीं होता. इफ यू गो बियॉन्ड द टॉप 100 तो ऐसे नहीं होता. इट्स बेसिकली अ कंपनी कम्स ऑन कैंपस, 2-4 लोगों को लेके चली जाएगी, फिर दूसरी कंपनी आएगी, मे बी आफ्टर 3 or 4 days, देन दे विल टेक अनदर 2-3 पीपल, देन 15 days कुछ नहीं होगा. तो ऐसे जनरली प्रोसेसेस चल सकते हैं एट दिस कॉलेजेस. ठीक है. सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ फाइंडिंग अ प्लेसमेंट ऑन योर ओन. यू हैव टू हैव दैट हसल कि मैं अप्लाई करूंगा या अप्लाई करूंगी 200 कंपनीज को, उसमें से मे बी 5 कंपनीज मुझे कॉल करेंगे. सो दैट इज जनरली द हिट रेट दैट वर्क्स. 200 में से 4-5 कंपनीज माइट एक्चुअली रिवर्ट कि भाई हमको इंटरेस्ट है, तुम अपना CV भेजो या तुम्हारे CV को मैंने कंसिडर किया है, वी कैन शेड्यूल एन इंटरव्यू विथ यू. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ गम्पशन दैट यू शुड हैव, दैट इज द अमाउंट ऑफ हसल एज आई सेड अर्लियर यू शुड हैव. एंड इफ यू आर गुड इनफ टू फाइंड अ प्लेसमेंट ऑन योर ओन, आई थिंक देन यू कैन कंसिडर द कॉलेजेस दैट आर देयर. दे विल गिव यू अ गुड थिंग ऑन योर CV कि चलो MBA है, सर्टिफाइड MBA ऑन योर CV तुमको मिल जाएगा. बाकी तुम्हारे ऊपर है कि कितना रिसोर्सफुल यू आर ऑफ फाइंडिंग अ जॉब ऑन योर ओन. ये अगर कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस. ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. यू गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ डू पीपल गेट योर फोन नंबर, मेल ID, वाई दे रन बिहाइंड यू, कौन सी जगह पे उनको सीरियसली लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, फैमिली एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज करनी चाहिए, एंड फाइनली इफ यू डिसाइड टू एक्सेप्ट, what is it that you should keep in mind, in which situations should you be accepting this particular bit. Now if you have had experience of dealing with these calls, these institutes, do let me know in the comment section below what is it that you think about it. If you want to get your profile evaluated and you want to understand whether you should be going for a particular B school or not, do let me know in the profile section below. I'll try to understand your profile and then suggest whether you should be doing it or not.
हैविंग सेड दैट, सी ऑल कॉलेजेस आर गुड यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेजेस खराब होते हैं और उनको तुम्हारे करियर के साथ खेलना है, उनको तुम्हारा पैसा ऐंठना है, इसके लिए दे आर रनिंग बिहाइंड यू. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. एंड एज इज द केस विद एनी बिजनेस, रीचिंग आउट टू यू, रीचिंग आउट टू द रेलेवेंट ऑडियंस इज पैरामाउंट. मतलब कोई भी बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, दे हैव टू रीच आउट टू देयर रेलेवेंट ऑडियंस. एंड वो रीच आउट करते हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू सोशल मीडिया, through paid reviews, through telemarketing, through mails, बहुत सारी जगह से रीच आउट करते हैं. सो नथिंग रॉन्ग इन रीचिंग आउट, जस्ट दैट यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. यू शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रांड नेम, द पीपल बिहाइंड द ब्रांड नेम, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आर देयर इंटेंशंस इन द राइट प्लेस और नॉट. ये सारी चीज़ों को लेके इफ यू आर कन्विंस्ड, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन. दैट इज वाई दिस वीडियो. नो maligning any B school or anything. I kind of know a lot of B schools that do this, and I'm like really good friends with. So no, nothing to take away from them in that regard. But you be careful, because you have to make that decision. You will have that thing on your CV for the entirety of your life, and you have to ensure that you are doing justice to a CV. That's why the video. So if you like the video, do leave a like on this video. Do share it with other people whom you think will benefit from this particular video. Do stay subscribed to this channel for more meaningful content, and I'll see you again in the next video.